Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 4, that is Animal Kingdom. Today we will study 3 phylums, that is phylum Porifera, phylum Cnidaria and phylum Ctenophora. So let's study. Okay, let's continue chapter 4 students. बच्चे, in the previous video we divided the animals on the basis of many characters into different phylums, like on the basis of their habitat, on the basis of their level of organization. तो हमने देखा कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, देन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री एनिमल्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल भी होते हैं, जैसे स्पॉन्जीज हैं, और सिमेट्रिकल भी होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी, जिसको हम सिलोम बोलते हैं, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक एसिलोमेट, देन सूडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट. On the basis of presence of germ layers, we divided them into diploblastic and triploblastic. Then on the presence of notochord which is a solid unjointed rod which is present on the dorsal side between the alimentary canal and nervous system in some animals. So on the basis of that we divided animal into 2 categories, the non-chordates and the chordates. So ये हमने क्लासिफिकेशन लास्ट टाइम स्टडी किया था स्टूडेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी है या एब्सेंट है. सो वी डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू द 11 phylums. So these are the major 11 phylums of animal kingdom. First is phylum Porifera, second is Cnidaria, number 3 is Ctenophora, number 4 is Platyhelminthes, then Ecliminthes, then phylum Annelida, Arthropoda, phylum Mollusca, Echinodermata, then Hemichordata, and last is the phylum Chordata. So students, today we are going to study the first 3 phylums. We will study the characteristic features of the members of these particular groups, and we will also discuss few examples. So students, you have to make the notes in this way only. You have to write the characteristic feature of the phylums and along with few examples in your notebooks. So let's start the first phylum, that is known as phylum Porifera. So as the name indicates, Porifera, these are pore bearing animals and commonly they are known as sponges. So सारे जो sponges हैं students वो किसको belong करते हैं, किस phylum को belong करते हैं, phylum Porifera. So 98% members जो हैं, जो sponges हैं, ये marine हैं, हमें ये समुंदर में, oceans में मिलते हैं, और just 1 or 2% हैं जो कि fresh water में, lakes वगैरह में मिलते हैं. So there are about student 5,000 living species of sponges. So let us discuss about the habit and habitat of these members. So mostly aquatic हैं, just now I explained you. See the beautiful color and the diversity. ये बहुत सुंदर हैं, बहुत डाइवर्स हैं, और मोस्टली ये मेंबर्स जो हैं या तो ये सीडेंट्री हैं. सीडेंट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स के अटैच्ड है, जहाँ पे अगर ओशंस के बेड में जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं. सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं. सॉलिटरी का मीन्स होता है अलोन, अकेले ग्रो कर रहे हैं, और कॉलोनी का मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप, उनकी एक कॉलोनी है और इकट्ठा वो ग्रुप जो है उसमें ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. सो सिंपल पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, सीडेंट्री हो सकते हैं. सीडेंट्री मीन्स एक जगह पे फिक्स्ड है, राइट. तो उसके बाद अगर हम इनकी शेप देखते हैं तो मोस्टली वाज जैसे होता है, जैसे फ्लावर पॉट है, वाज की शेप में होंगे, या मोस्टली इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी. स्टूडेंट्स, ये जो मेंबर हैं इसमें क्या है, वी हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं, अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में शो करा कि इनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. इट मीन्स बॉडी जो है वो एक लूजली अरेंज्ड सेल्स का एक एग्रीगेट है, और सेल्स आपस में कोई कोऑर्डिनेशन शो नहीं कर रहे, कोई नेक्स्ट लेवल जो है टिश्यू की फॉर्मेशन इसमें नहीं है. सो सेल जो है वो एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट प्लान जो है वो बॉडी शो कर रही है. मीन्स जो बॉडी है जस्ट एग्रीगेट ऑफ सेल्स है, उसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है.
राइट। सो उसके बाद जो ये मेंबर हैं तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल है। ये मेंबर क्या है? एसिमेट्रिकल है। इसमें बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स जो हैं उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। देन ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं बच्चे। इसमें जो, क्योंकि ये पॉरीफेरा के मेंबर हैं, इनके पास पोर्स होते हैं। तो 2 तरह के पोर्स होते हैं। एक पोर्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं और बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं। सो इनसे वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। और एक जो है वो बड़े पोर्स होते हैं जिसको हम ऑस्क्यूला बोलते हैं, जो 1 और फ्यू होंगे और लार्जर इन साइज होंगे। सो ये जो पोर हैं ये वाटर की इनलेट और आउटलेट के लिए जो है वो हेल्प करते हैं। सो स्मॉल पोर जहाँ से वाटर एंटर करता है वो ऑस्टिया है, और ऑस्क्यूलम जो है वो एक ओपनिंग है, वहाँ से वाटर जो है वो एग्जिट करता है, बॉडी से बाहर जाता है। सो बच्चे ये एक वाटर कैनाल सिस्टम है जो कि इस मेंबर्स का, इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनका एक यूनिक फीचर है। आप देख सकते हो कि बॉडी के ऊपर कितने छोटे छोटे ऑस्टियाज नज़र आ रहे हैं। मिलियंस ऑफ ऐसे पोर्स होंगे और इन पोर से जो है वाटर जो है वो अंदर जा रहा है। सो यहाँ पर एक मैग्नीफाई किया गया है, ये वाटर जो है पोर्स बनाए हैं, वाटर ऑस्टिया से अंदर जाएगा और अंदर एक कैविटी है जहाँ पे जाके एक्युमुलेट होगा, इसको हम स्पोरोसील कहते हैं, ठीक है। और बाहर जा रहा है ऑस्क्यूलम से, जो कि एक है, लार्ज है, बिग पोर है। सो जो कैनाल सिस्टम हमने बनाया जिसको हमने वाटर कैनाल सिस्टम बोला, इट इज़ यूज्ड फॉर फूड गैदरिंग के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए हम इसे, जो एनिमल हैं वो यूज़ करते हैं। क्योंकि जो पॉरीफेरा के मेंबर हैं वो बहुत सिंपल हैं, उसमें कोई रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन का कोई सिस्टम नहीं है और ये बॉडी सरफेस से ही होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो बॉडी कैविटी अभी हमने बनाया, सो इस बॉडी कैविटी को हम स्पोरोसील कहते हैं। देन बच्चे यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनको हम कोनोसाइट्स कहते हैं। कॉर्नोसाइट्स के होते हैं ये जो मेंबर्स हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक मेंबर हैं। सो जो इसमें अडल्ट बॉडी है वो 2 लेयर से मिलके बनती है। आउटर जो है वो एक्टोडर्म है, अंदर जो है वो एंडोडर्म है, ठीक है। सो जो अंदर वाली लेयर होता है बच्चे, वो स्पेशल वहाँ पे फ्लैजिला वाले स्पेशल सेल्स हैं, उनके पास एक कॉलर शेप्ड के स्पेशल सेल्स हैं विद फ्लैजिला। सो ये जो सेल्स हैं इनको हम कोनोसाइट्स कहते हैं। सो इनका फ्लैजिला जो है वो बीट करता है और वाटर करंट में इनको, इनकी मूवमेंट में भी इनको हेल्प करता है। उसके बाद ये जो कोनोसाइट हैं ये इसकी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देन पॉरीफेरा का जो मेंबर है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इनकी जो बॉडी है वो कहाँ से मिलकर बनती है? सिलिका से, कैल्शियम कार्बोनेट से, और प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। सो इसमें जो इसका जो स्केलेटन है वो स्पेशल तरह का कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलके बनता है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और वाटर रेजिस्टेंट भी बनाता है, ठीक है। देन पॉरीफेरा जो है वो डेट्राइटस जो है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उस पर फीड करता है, और इसमें रिप्रोडक्शन वो एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्चुअल मेथड मोस्टली इसमें बडिंग होती है या फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड इट हैज़ सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। सो स्पॉन्जेस जो हैं वो बाइसेक्चुअल है, इसमें सेक्चुअल मोड जो है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स होती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दे हैव ए पावर ऑफ रीजनरेशन। इनके पास बहुत हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। अगर बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज होता है तो वो दोबारा से उसको रीजनरेट करते हैं, वो ग्रो कर जाता है। सो एग्जाम्पल इसमें साइकॉन और यूस्पॉन्चिया हैं। देन बच्चे यहाँ पर मैंने एक आपको कैविटी एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे लिया है। तो ये जो है स्पॉन्जोसील है, ये कैविटी आपको नज़र आ रही है, और ये जो केलार है इट इज़ लाइंड विद द स्पेशल कॉलर सेल जिनको हम कोनोसाइट्स कहते हैं। अभी मैंने आपको कोनोसाइट एक्सप्लेन किए थे, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इनके पास फ्लैजिला है और कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं? फूड इनटेक में भी हेल्प करते हैं। फैगोसाइटेसिस होता है जिससे फूड ये अपने अंदर लेके जा सकते हैं। सो ये स्पेशल तरह के फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं जिनको हम कोनोसाइट्स कहते हैं। कोनोसाइट्स कहाँ हैं? जो अंदर वाली एंडोडर्म है उसके साथ ये अटैच्ड होते हैं। सो बच्चे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने करेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस किए फाइलम पॉरीफेरा के, कि वो पोर बियरिंग है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और मोस्टली वो एसिमेट्रिकल है। फिर मैंने आपको बताया कि वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। देन कोनोसाइट स्पेशल सेल्स हैं उनके पास, और उसमें जो न्यूट्रिशन जो है या जो डाइजेशन वो ले रहे हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो हो रही है वो बॉडी सरफेस पे होती है, मोस्टली मैरिन होते हैं ये, और उसके पास उनका जो
स्केलेटन है वो स्पेशल आपका मैंने बताया कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलके बनता है, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर अब उसके फ्यू एग्जाम्पल्स हम लेंगे बच्चे, आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चे साइकॉन है, सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल साइकॉन। देन सेकेंड इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और थर्ड जो है वो यू स्पॉन्जिया है, इसे हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पोरस होता है, तो इसको जो है अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो बहुत सारा वाटर जो है ये अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे हमने देखा कि ये पॉरीफेरा के मेंबर्स बहुत कलरफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो हमें इसमें मिलती है। So that's all about the first phylum, students, that is phylum Porifera, and this is the only phylum which shows cellular level of organization. Now next is the second phylum. So let us start the second phylum, that is known as phylum Cnidaria and also known as phylum Coelenterata. So इसके examples हैं हाइड्रा है, जेलीफिश है, कोरल्स हैं, सी एनिमॉन्स हैं, वो सारे जो हैं वो निडेरिया में आते हैं। सो निडेरिया जो है बच्चे ये एक ग्रीक वर्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड एक है नाइट। सो नाइट जो वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टिंग। स्टिंग होता है, जैसे हम कहते हैं कोई डंक मारता है, तो ये इसके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। सो इन मेंबर्स को इसीलिए हम नाइडेरियंस बोलते हैं या नाइडेरिया बोलते हैं। इनको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास एक कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी, जो कि एक तरह की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, डाइजेशन में हेल्प करती है। उस कैविटी को हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं। सो इसलिए इस फाइलम को हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। सो बच्चे ये नाइडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स हैं। अगर उनका हम हैबिट और हैबिटेट स्टडी करेंगे, सो मोस्टली ये जो मेंबर हैं ये एक्वेटिक हैं, मैरीन हैं, हमें ओशंस में मिलते हैं, और सेसाइल और फ्री स्विमिंग भी होंगे। या तो वो एक जगह पे होंगे या फ्री स्विम कर रहे होंगे, सॉलिटरी होंगे, अकेले भी ग्रो करते हैं, और एक कॉलोनी की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। सो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल। नेक्स्ट let us study few more characters of phylum Cnidaria और Coelenterata। मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास सेंट्रल कैविटी है जिसे हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। सो ये जो सेंट्रल कैविटी है सिलेंट्रॉन, बच्चे आई विल राइट इट हियर, इट इज दे हैव अ सेंट्रल कैविटी, सो दैट सेंट्रल कैविटी इज नोन एज सिलेंट्रॉन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैविटी, सो दे आर नोन एज Coelentratas। सो इसमें जो है मोस्टली ये मैरिन है, बट इसमें से कुछ मेंबर्स हैं जो हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं। उसका एग्जांपल है हाइड्रा। स्टूडेंट ये नोट इट डाउन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए, निडेरियंस मोस्टली जो मैरिन है इनका जो फ्रेश वाटर एग्जाम्पल बताइए। सो दैट इज़ हाइड्रा। सो बॉडी जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। स्टूडेंट आई थिंक अब आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, कि बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय एनी प्लेन, लेकिन अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, सो बॉडी जो है वो क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पे टिश्यू लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। तो सेलुलर के बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा आ गया, हमने पिछले फाइलम में देखा कि सेलुलर लेवल है जिसमें हमने स्पॉन्जिस स्टडी किए। उसके बाद जो ये मेंबर्स हैं इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है। तो बॉडी जो है एनिमल बॉडी मल्टी सेलुलर है, और इसमें जो सेल्स हैं दे कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो टिश्यू बनाते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें नाइडेरियंस जो है इसमें मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये मेंबर जो हैं ये डिप्लोब्लास्टिक भी हैं। सो यहाँ पर भी हमारे पास दो जर्म लेयर हैं जिनसे बॉडी बनती है, और जो हैं वो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देन यू हैव प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। यहाँ पे स्पेशल सेल्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हम नाइडोसाइट्स बोलते हैं। These नाइडोसाइट्स दे हैव स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, और वो स्टिंग मारने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं, राइट।
सो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो इसका एपिडर्मिस होता है उसके पास क्या होते हैं, स्पेशल स्टिंग वाले सेल्स हैं। इनको हम नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं, इनको हम नाइडोसाइट्स भी कहते हैं। सो उन नाइडोसाइट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है जिसके कारण वो स्टिंग मार सकते हैं, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, उसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। ठीक है, सो ये निमेटोसिस्ट से वो जब भी उनका कोई प्रे आता है तो उसको प्रे के अंदर जब वो स्टिंग से उसको इंजेक्ट कर देते हैं और प्रे जो है उसको वो पैरालाइज कर सकते हैं। सो उसके डिफेंस के लिए ये जो स्ट्रक्चर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, सो यहाँ पे बच्चे मैंने थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए एक हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है। सो हाइड्रा मैंने अभी बताया कि हाइड्रा जो है वो निटेरिया है बट फ्रेश वाटर है। सो हाइड्रा का आपने छोटी क्लासेस में भी स्ट्रक्चर देखा। हाइड्रा जो होता है उसके पास फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। सो टेंटिकल्स जो होते हैं दे आर मोस्टली वो जो माउथ है उसके पास होते हैं और जो कि फूड कैप्चरिंग के लिए और डिफेंस के लिए एनिमल की हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये जो टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स के ऊपर, ये जो टेंटिकल्स हैं इन टेंटिकल्स के ऊपर स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं और नाइडोसाइट्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये क्या है, स्टिंग सेल्स हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स और ये क्या करते हैं, इनके पास ये पॉइजन वाला कैप्सूल है, उसका नाम क्या है, निमेटोसिस्ट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो जो पॉइजनस कैप्सूल है उसको हम निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं और निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, निमेटोसिस्ट इंजेक्ट कर देता है टॉक्सिन इनटू द प्रे टू पैरालाइज इट, राइट। सो दिस ये जो नाइडोब्लास्ट जो हैं या जो नाइडोसाइट्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर एंकरेज, दे आर यूज्ड फॉर डिफेंस एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कैप्चर प्रे। सो ये आप देख सकते हो, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट। ओके, सो नाइडोसाइट्स क्या हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड दे हेल्प इन कैप्चरिंग द लार्ज प्रे। एज निमेटोसाइट्स क्या करते हैं, दे डिस्चार्ज द टॉक्सिन इनटू देम। सो स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया। देन टिश्यू लेवल, जस्ट नाउ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि अभी हमने फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा में क्या देखा, सेलुलर लेवल। अब हम उससे नेक्स्ट एडवांस लेवल पे आ गए, दैट इज फाइलम निटेरिया। तो यहाँ पर क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें मिलेगा। देन नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है इसके पास। माउथ और एनस जो है वो सेम है। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस में देखते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है। लेकिन ये जो मेंबर है निटेरियंस, इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग है, देयर इज जस्ट वन ओपनिंग, और यही ओपनिंग जो है वो माउथ का काम कर रही है, जैसे इट मीन्स इंजेक्शन में हेल्प कर रही है, कोई चीज़ की इनटेक कर रहा है उसमें हेल्प कर रही है, और यही ओपनिंग जो है वो इजेक्शन में हेल्प कर रही है, मीन्स वेस्ट को बाहर रिमूव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं बॉडी जो प्लान है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। माउथ और एनस जो है दे आर सेम, राइट। देन बॉडी कैविटी सिलेंट्रॉन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा बच्चे कि इसलिए हमने इस फाइलम को सिलेंट्रेटा बोलते हैं बिकॉज इसमें जो है एक सेंट्रल कैविटी होता है जिसको हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं। सो ये एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जो कि डाइजेशन में और फूड की सर्कुलेशन में हेल्प करता है, राइट। सो इसमें हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या देखे कि मेंबर जो है इसमें सिलेंट्रॉन है, इसमें टिश्यू लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक हैं, और इसमें जो सिलेंट्रॉन है उसका सिंगल माउथ है जिसमें कि इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों में हेल्प करता है, और ये जो है इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ये अगर बॉडी कैविटी नहीं है, सिलोम इसमें एब्सेंट है, तो ये कौन से मेंबर हो गए, ये हो गए एसिलोमेट। ठीक है, सो दीज आर एसिलोमेट, राइट। सो आई कैन राइट इट अगेन फॉर यू स्टूडेंट्स। So this coelom is absent, there is no coelom, so these are known as acoelomates, right? Acoelomate.
और हैबिटेट मैंने अभी आपको इसका हैबिटेट बताया। तो अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, एक नर्व्स का नेटवर्क होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। सो मोस्टली ये मेंबर्स जो हैं वो सॉलिटरी भी होंगे, जैसे हाइड्रा जो है वो सॉलिटरी होता है, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो, अब यहाँ पे दो शेप्स बच्चे मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो निडेरियंस जो हैं बच्चे, मोस्टली दो टाइप्स हैं इनके बेसिकली। तो एक तो है वो सिसाइल हैं, फ्लावर लाइक लगते हैं देखने के लिए, उनको हम पॉलिप्स बोलते हैं। पॉलिप्स दे आर सिडेंट्री हैं, ठीक है, मूव नहीं कर रहे हो, और ये सिलेंड्रिकल हो। और दूसरे जो होते हैं उनको हम मिड्यूसा बोलते हैं। मिड्यूसा जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग वाले होते हैं, एक सॉसर शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिड्यूसा। सो दीज आर द टू फॉर्म्स, द पॉलिप्स एंड मिड्यूसा, ठीक है। सो पॉलिप्स को अगर देखो बच्चे, पॉलिप्स ये दो बॉडी फॉर्म्स हैं निडेरिया के अंदर। पॉलिप्स जो हैं वो ट्यूबुलर हैं, अटैच्ड हैं और एसेक्सुअल है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इसमें यूनिक फीचर क्या है कि इसमें माउथ और टेंटिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में हैं। आप देख सकते हो इसमें कि माउथ और टेंटिकल्स कहाँ हैं, ऊपर वाली साइड पे हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप नीचे देख सकते हो। सो इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और टेंटिकल्स और माउथ जो हैं दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रिला इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हमें फ्रेश वाटर में मिलता है, और एडेम्शिया इसका एग्जाम्पल है जो कि मैरीन है। देन सेकेंड है मिड्यूसा। मिड्यूसा आप देख सकते हो कि जो मिड्यूसा है वो एक सॉसर शेप दिख रहा है, अम्ब्रेला शेप लग रहा है, और ये मिड्यूसा जो होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं और सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इनका माउथ और टेंटिकल्स जो है वो नीचे की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल देखो ऑरिलिया, ऑरिलिया जो है इसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। सो ये जो मेंबर हैं इसमें हमें टिपिकली दो मतलब कि फॉर्म्स जो हैं वो मिलते हैं, दैट इज़ पॉलिप्स। सो पॉलिप्स जो हैं वो सेसाइल होंगे, और मिड्यूसा मेंबर्स जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, जो कि अम्ब्रेला शेप्ड और सॉसर शेप की बॉडी के होते हैं। सो मिड्यूसा फ्री स्विमिंग हो गए। माउथ के पास टेंटिकल्स है जो कि उसको लोकोमोशन में और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम मैंने अभी बताया कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, प्रॉपर एक नर्व्स का नेट है, कोई प्रॉपर उसमें ऑर्गन नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग से होगा, और कुछ मेंबर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे पॉलिप्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मेड्यूसा है उसमें सेक्सुअल होता है, ठीक है। देन इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोरल्स हैं, आपने कोरल्स के बारे में सुना है, कोरल्स इसके बहुत कॉमन एग्जांपल हैं। ऑरिलिया जेलीफिश है। देन मैंने अभी आपको बताया एडेम्शिया है जिसको सी एनिमोन्स भी कहते हैं। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स बच्चे मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप इसकी वैरायटी देख सकते हो, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। तो आप इसमें इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये आप नोट कर सकते हो। तो इसमें एक एग्जाम्पल है जिसको बच्चे हम बोलते हैं दैट इज़ मी एंड्रीना, येस हियर इट इज़। सो दिस इज़ ब्रेन कोरल्स, ठीक है। सो इट इज़ मी एंड्रीना विच इज़ अ ब्रेन कोलर। आप उसको देख सकते हो कि इसके ऊपर किस तरह से स्क्वाइल्ड ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। सो इसको हम ब्रेन कोरल्स कहते हैं। So that's all students about the second phylum, which is phylum Nidarea. So we have discussed the characteristic features, and I have also mentioned few examples here that you can note down. Okay, now let's come to the next phylum, that is the third phylum, and this is known as phylum Ctenophora. फाइलम टीनोफोरा में हमारे पास क्या आता है, इसमें बच्चे कोम जेलीज आते हैं और सी वॉलनट्स आते हैं। सो इसमें जो वर्ड है टीनोज वर्ड जो है इसका मतलब होता है कोम्स। सो ये वर्ड आ रहा है टीनोज, ये ग्रीक वर्ड है टीनोस, इसका मतलब होता है कोम। सो मोस्टली जो मेंबर हैं ये इनके पास कोम प्लेट्स होते हैं जो कि उनको मूवमेंट में और लोकोमोशन जो है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कोम प्लेट्स हैं। सो इसमें कोम जेलीज आते हैं, सी वॉलनट्स आते हैं, और ये जो कोम्स हैं बच्चे ये सीलिया ग्रुप से मिलकर बनते हैं जो कि उसको स्विमिंग वगैरह करने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। तो लेट अस स्टडी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। सो मोस्टली बच्चे ये जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, सो ये
जनरली जो क्या है मैरिन है और ये हमें फ्रेश वाटर में नहीं मिलते और इसमें बॉडी जो है वो बाइरेडियली सिमेट्रिकल है। अब आपको समझ आ गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इसमें बॉडी जो है वो 2 जर्म लेयर से मिलके बनती है। आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एक्टोडर्म और अंदर वाला क्या है एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बच्चे यहाँ पर कई बारी एक जेली लाइक सब्सटेंस, मैंने आपको मीजोग्लिया बताया था फर्स्ट फाइलम के अंदर, तो मीजोग्लिया भी कई बार डेवलप होता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो इसके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्स जो है जो अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टिश्यू बन गया, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें आ गया, जिसमें कि टिश्यू सेल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। सो दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है मोस्टली स्फेरिकल बॉडी है विद एक्सटर्नल रोज ऑफ सेल। और उसमें यहाँ पर मैं एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात अभी मैंने बताया कि इसको हमने टीनोफोरा में क्यों रखा, कि इसके पास क्या होते हैं, कोम प्लेट्स होते हैं। सो कोम्स कहते हैं, तो ये कोम प्लेट्स होते हैं मोस्टली इसके पास। सो 8 कोम प्लेट्स हैं और 8 कोम प्लेट्स जो हैं वो वर्टिकली अरेंज होते हैं, तो इसलिए ये जो है उसको सीलियास के साथ ये बनते हैं और उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, राइट। देन बच्चे यहाँ पर एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जो ये मेंबर शो करते हैं। इनमें से लाइट इमिट होती है, ठीक है। सो ये लाइट को रिलीज करते हैं, दैट इज अ वेरी वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है इनका। सो दे एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज एमिशन ऑफ लाइट। सो इस मेंबर्स का ये यूनिक फीचर है टेनोफोरस का, क्योंकि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस है। देन इसके पास इस मेंबर्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है। देयर इज नो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, गेमीट्स हैं जो कि फ्यूज़ करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन डिप्लॉयड जनरेशन आ जाती है। सो देयर आर अबाउट बच्चे 100 लिविंग स्पीशीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली ऑफ मेंबर्स टीनोफोरा, राइट। सो इसका अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसका भी नर्वस सिस्टम जो है वो डिफ्यूज्ड टाइप है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है जो कि फ्यू नर्व्स का नेटवर्क है उससे बनता है, कोई प्रॉपर यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टीनोप्लाना एग्जांपल बच्चे यहाँ पे लिखा है, प्लूरोब्रैकिया एग्जांपल लिखा है। सो ये जो है आप नोट कर सकते हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। सो यहाँ पर बच्चे मैंने 2 एग्जाम्पल्स रखे हैं। दिस इज़ प्लूरोब्रैकिया, मैं यहाँ पे आपके लिए इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। दिस इज़ प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। सो ये प्लूरोब्रैकिया है स्टूडेंट्स। सो इसके पास आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको प्लेट्स दिख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोम प्लेट्स होती हैं। देन उसके पास टेंटिकल्स भी होते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं बड़े रिफ्रैक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं जिसके साथ कि वो अपने प्रे को भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड 3 फाइलम्स। हमने अपने एनिमल किंगडम के 11 फाइलम में से आज हमने 3 फाइलम्स जो हैं वो डिस्कस करें, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड उनके एग्जाम्पल्स, दैट इज़ फाइलम पोरिफेरा, and then after that we discussed about phylum Nidaria, and then the third phylum, that is Ctenophora. So that's all students. Thank you very much for watching this lecture. In the next class we will study about the next phylums, that is phylum Platyhelminthes, phylum Echelminthes, and the next phylum that is known as phylum Annelida. So thank you so much students. Thanks for watching. Have a nice day.